So first question for the day is question practice is very important question. Now for physics, this is physics class, right? We will discuss physics question only. First question is the potential difference between the terminals of the potential difference the potential difference between terminals of an electric heater is 80 volt, 80 volt, okay? When it draws a current of 4 ampere from the source, okay? What current will the heater draw what current the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt. Try to solve this question and I'll see who can answer faster. Okay, bache, you have doubt, we'll discuss later, don't worry. All the doubts are going to be clear. Not today, maybe next day, but doubts are going to be clear. Next question is resistance of a metal wire of length 220 meter 220 meter is 7 ohm at 20 degrees C. 7 ohm at 20 degrees C. The diameter of the wire is if the diameter of the wire is 0.8 mm. 0.8 mm. What will be the resistivity of the metal? It will be resistivity of the metal. What will be the resistivity of the metal at same temperature? At same temperature. So let me see who can answer faster. Suryanshu is saying, okay, bache, if you are done with first question, you can try second question.
First question done. First question done, everyone. Second question, yes, we say resistance of a material, sorry, resistance of a metal wire of length 220 meter is 7 ohm at 20 degrees Celsius. If the diameter of the wire is 0.8 mm, what will be the resistivity of the metal at same temperature? So see, first question is what is the question? Question is yes, 6 ampere is correct answer. So बच्चे suppose you have an electric heater. आपको पता है कि electric heater होता है, right? So electric heater है, so electric heater there is some voltage you need to operate that heater. So बोला है कि जो है ना electric heater is 80 volt. उसका जो दो टर्मिनल होते हैं, दोनों टर्मिनल के बीच में आपके पास suppose you have an heater, तो difference between terminals is 80 volt. कुछ मान लो इसे टाइप का है आपका, this is heater and there is a resistor. तो यहाँ पे आपका वोल्टेज सपोज V है, this is R. So you know that if suppose current I is flowing somehow, I can write V equals to I into R. V equals to I into R, right? अब देखो इसमें there are many ways to, there are two ways to solve this question. Other way are also there we are sticking to this. First is V equals to IR, right? So voltage is given. Now many people are going to be confused because of you know that it is saying that terminals के बीच का voltage, the difference between voltage across the heater terminal is, ठीक है, कितना है 80 वोल्ट और करंट कहीं और से आ रहा है. बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा. सिंपल सी बात है, वोल्टेज का डिफरेंस एक ही जगह है, राइट? करंट उसी थ्रू फ्लो होगा ना, करंट उसी थ्रू फ्लो होने वाला है. तो सर्किट प्रॉब्लम अपना ऐसा ही बनेगा कुछ. बाकी वोल्टेज दे भी नहीं रखा है, उसको यूज करेंगे नहीं, ठीक है? तो V इक्वल टू I इक्वल टू IR. अब यहां से क्या आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? रेजिस्टेंस है V by I. तो इनिशियली रेजिस्टेंस क्या है आपके पास? व्हाट इज 80 वोल्ट, वोल्टेज इज 80 डिवाइडेड बाय 4. सो ये आएगा 20 ओम. क्या आ गया बच्चे? 20 ओम. 20 ओम क्या है आपका? रेजिस्टेंस आया. अब 20 ओम रेजिस्टेंस आया है, ध्यान से देखो. अगेन बोला है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस 120. अब बताओ ये जो सर्किट का R है, R चेंज होगा नहीं होगा? R इज गोइंग टू रिमेन सेम. तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्या पूछा है? करंट. तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से देखो V by R, इट मींस 120 by 20. तो ये आ गया 6 एंपियर. कुछ बच्चे बोलते सर, कुछ बच्चों को और चीज समझना चाहिए, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है ना, तो मान लो V1 IR V1 equals to I1R होगा, सॉरी V1 equals to I1R होगा एंड V2 equals to क्या होगा? I2R होगा. क्या ऑब्वियस सी बात है होगा. रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, अपन कुछ और चेंज नहीं कर रहे. दोनों का रेशियो ले लो तो आएगा V1 by V2 equals to I1 by I2. V1 by V2 आपको पता है इनिशियल वोल्टेज क्या है? 80 वोल्ट डिवाइडेड बाय क्या है? 120 वोल्ट. I1 की वैल्यू पता है, I1 की वैल्यू इज 4. सो I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 120 by 80 into 4. 4 से 20 ये आ गया आपके पास 6 एंपियर. तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी. अगर ये समझ में आ रहा है तो आराम से कर सकते हो. क्लियर है सबको? सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करो, तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं. थर्ड क्वेश्चन इज two conductors X and Y, two conductors X and Y of circular cross section
circular cross section has radii in the ratio of 1:2. Okay. Length in the ratio 1:3, and resistivity in the ratio of 3:1. What will be ratio of resistance ओके। सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत बच्चों कितने सेकंड वाला क्वेश्चन बच्चों हुआ नहीं हुआ आपसे? लेट से किसी का आंसर आया है 0.625 × 10⁻⁴ मीटर। ओके, तो देखो इसको करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखो पहला पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ चीजें याद रखनी है। बहुत बार ये जो डाउट्स है वो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि आपको मजे आएगा। बहुत बच्चों को इसमें ये डाउट रहता है ना सर, मैं बोलूंगा यस 20 डिग्री टेम्परेचर दे रखा है, उसका क्या यूज है? Many people have this doubt, right? तो मैंने बताया था टेम्परेचर इज गिवन, so you can see that temperature initial temperature is 20 degree Celsius, final temperature is 20 degree Celsius. So बच्चों I told you whenever we define resistance pressure and temperature पे भी डिपेंड कर रहा है, और रेसिस्टिविटी डिपेंड कर रहा है, राइट? तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है। दिस इज व्हाई अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर मेंशन करते हैं कि ओके वी आर मेजरिंग दिस रेजिस्टेंस एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर व्हिच इज 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये बस बताने के लिए है कि अच्छा इस टेम्परेचर पे मेजर कर रहे हैं। इसमें और भी चीजें होती हैं, सम टाइम्स सपोज टेम्परेचर चेंजेस रेजिस्टेंस आपका चेंज होता है, तो बात की बात। अब यहाँ पे देखो कैसे निकालोगे, तो यू नो दैट R = ρL/A होता है। आपको क्या निकालना है, ये रेसिस्टिविटी निकालनी है, तो रेसिस्टिविटी आएगा RA/L। व्हाट इज रेजिस्टेंस बच्चे? रेजिस्टेंस इज 7। एरिया क्या होगा, बात आती है कि सर एरिया क्या होगा, तो क्रॉस सेक्शन कैसा है, क्रॉस सेक्शन है आपका, क्रॉस सेक्शन कैसा है बच्चे, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है। सर्कुलर का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर, तो आएगा पाई। और यहाँ पे बिकॉज डायमीटर दे रखा है ना आपको, ये देखो डायमीटर इज 0.8 mm, तो रेडियस क्या आ जाएगा 0.4 × 10⁻³ मीटर। ये तो यूनिट कन्वर्जन आपको आता होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4 × 10⁻³ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट इज लेंथ बच्चों, लेंथ इज 220 मीटर, 220। अब देखो इसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। सो रो इक्वल टू, देखो ध्यान से कैलकुलेशन भी मैं आपको सिखा देता हूँ। 7 × 22/7 × इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 16 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 220। बहुत बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन गलत कर देते हैं या बहुत ज्यादा जल्दी में बहुत सारे मिस्टेक्स कर देते हैं। तो यहाँ से आएगा 16 × ये नीचे 10 है, ऊपर ले जाओगे 10⁻⁹। ठीक है, या ओम मीटर। इसके बाद या और ऐसे लिखोगे तो क्या आएगा 16 × 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। किसी बच्चे का ये आया है, एनीवन, किसी भी बच्चे का ये आया है? नहीं आया है, गलतियां की है सबने, सीधी मिस्टेक्स किया है। आंसर क्लियर है नहीं है, डाउट क्लियर है आपको? ध्यान से देखो। ओके वेरी गुड बच्चे, देविका बहुत अच्छे। रिपीट, शाबाश बच्चे।
सिंपल सा है, आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, बिकॉज आर इज गिवन, लेंथ इज गिवन, एरिया इज गिवन। एरिया इज गिवन बिकॉज अपने को रेजिस्टेंस पता है। तो अगर आप रेजिस्टिविटी निकालोगे क्या आएगा, आर ए, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय एल, ये आ गया। नाउ यू जस्ट नीड टू पुट वैल्यूज। वैल्यूज हमेशा पुट करोगे तो वैल्यूज पुट करते वक्त ध्यान क्या रखना है, यू मस्ट रिमेंबर वैल्यूज है यूनिट के साथ रखोगे, या तो मीटर केजी या सेकंड में रखोगे, या सेंटीमीटर केजी और सेकंड में रखोगे, ये ध्यान रखना। क्या होता है ना कि कुछ लोग क्या करते हैं, मीटर में एक यूनिट दूसरा रखेंगे सेंटीमीटर में, ये गलत होता है। इफ यू नीड टू फाइंड करेक्ट आंसर यू हैव टू यूज सेम यूनिट सिस्टम। तो इसमें मीटर में है तो सबको मीटर में डालो, सेंटीमीटर में है तो सबको सेंटीमीटर में डालो, बिकॉज 1 केजी प्याज प्लस 1 केजी टमाटर मिलकर 2 केजी टमाटर नहीं होता, राइट। यू वांट टू मिक्स सेम थिंग एंड इंक्रीज रेट, उसी चीज को डबल करना है तो आपको क्या है, सेम चीज दो बार ऐड करना होगा, ठीक है। अभी जाके कुछ एडिशन हो सकता है, इसमें भी वैसे ही अगर यूनिट अलग अलग लेंगे, खिचड़ी पकाओगे तो आपकी जो खिचड़ी है ना वो बिल्कुल भी खिचड़ी बन जाएगी, अभी पकेगी नहीं, आंसर गलत आएगा, ध्यान रखना। पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं बीरबल की खिचड़ी, बट लेट्स से कभी वो भी सुनाऊंगा, पता नहीं होगा ये पहले को अंडरस्टूड। ओके, क्या लगता है थर्ड वाले का आंसर क्या लगता है बच्चों? Good morning. कैसे हो बच्चे? कौन मुस्लिम है? अरे यहाँ तो सभी हैं, 18 हैं सभी। अरे मैंने देखा कि मोस्टली एक या दो बच्चे डेली एब्सेंट होते हैं, समटाइम। ये अथर्व चौधरी, अंशिका है ना? मुस्तकीम तुमने कल इंग्लिश क्लास में नहीं थे, बायो क्लास में। अभी तुम सोचो हम यहाँ पे अटेंडेंस देते हैं तुम्हारी प्रॉपरली, तो फिर केयरफुल, ऐसा नहीं कि आज एक क्लास ले लिया कल की क्लास में नहीं आएंगे, रेगुलर हमारे यहाँ पे अटेंडेंस चलती है, तो रेगुलर आना है कि तुम्हें लगेगा मैडम को क्या पता लगता है, हम तो घर पे बैठे लिंक करें या नहीं करें, लॉगिन करना देखिएगा। अब जिस बच्चे ने कल की क्लास मिस स्किप कर दिया है वीडियो देखिए, ठीक है, अदरवाइज आज के क्लास को समझ में नहीं आएगी, ओके। चलो मैं सर को बात देती हूँ, सर हेलो। सो देखो एक बच्चे मैं बार-बार रोल पे इसी बता रहा हूँ ना, एम 9 बजे आपकी आईडी पूछना पड़ेगा मेरे को, आई डोंट नो इफ यू हैव एनी क्लास एट 8 AM बट आई हैव अदर क्लास एट 8 AM। ओके, सो नाउ लिसन टू मी केयरफुली। देखो व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम में भी नीट हो सकता है, जेईई हो सकता है, मे बी एमपीएससी हो सकता है, मे बी रेस्टोस एग्जाम और एनीथिंग। बच्चे we live in a country where population is very big. Population is very big, at the same time number of position, number of vacancies, number of seats are very less when you are applying for a scholarship. ऐसे अगर सीन में अगर if you are going to be average student, आप सबसे ज्यादा सफर करोगे, या you are going to be TikTok star, TikTok पे भी flop star, or you are going to be nothing, just sit on the corner of the
जो भी है ना आपका जो शॉप्स वगैरह होते हैं उसके कॉर्नर रोड के कॉर्नर में बैठ के बस क्या करोगे, गाड़ियां काउंट करोगे। ओके ये मर्सिडीज बहुत बढ़िया है, ये BMW बहुत बढ़िया है। अनफॉर्चुनेटली सपने ही देखते रह जाओगे, खरीद नहीं पाओगे कभी। और खरीद भी नहीं पाओगे तो कुछ बच्चों को होता है ना, मैं पापा का दिया हुआ जो है ना यूज कर लेंगे, पापा पैसा वाले हैं। अरे बेवकूफ इंसान, सपोज योर फादर हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो इफ यू आर इन गोवा, लेट्स सपोज गोवा में, तो आपको क्या है, सभी जो लोग जानते हैं दे आर गोइंग टू थिंक अबाउट पापा को बड़े आदमी हैं, ये है वो है। नाउ इमेजिन सीन जैसे ही गोवा से बाहर गया तब क्या, किसी से बोलोगे कि ये है वो है, तो सामने वाला पूछेगा व्हाट डू यू हैव, those are achievements of your father. It doesn't matter how big or how successful our fathers are. If we are not going to do something big, nobody is going to appreciate, and your life is going to be so boring, and everybody is going to criticize because you had the best opportunity to do something and you are doing it. Because lack of responsibility समझो या जो भी है, lack of awareness समझो, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आती है। Some people are not unable to understand. You must listen to me very carefully. This is something जो आपका लाइफ क्या करता है, बच्चे को लाइफ बर्बाद कर देता है। और आपको क्या होता है ना कि एक अच्छी खासी लाइफ, where you can be happy, you can enjoy your life. Your life becomes sad for 4 to 5 years. और फिर आप क्या करते हो? You try for jobs and business and all those things. आप क्या है उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो, इधर बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में। 10th क्लास कहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है, और जर्नी इज वेरी ब्यूटीफुल। देयर आर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल बट इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आप मेहनत करके देखो। लोग हमेशा बोलते हैं ना कि सक्सेसफुल। हेलो, अभी आ रही है आवाज? कैन यू हियर मी नाउ एवरीवन? ओके, चलो ठीक है फिर। तो ये सारी चीजें हैं ना बच्चे, ऑल दीस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि आप क्या है ना चीजों को देखे, समटाइम्स यू मस्ट थिंक। देयर आर many thousands of people, honestly बहुत सारे ऐसे लोग हैं। I was once watching a video that in all over world there are many children who are there, children who are not able to afford quality education, but उनका mind जो है they are very sharp, they are बहुत ज्यादा brilliant है। मैं सोचता हूँ यार कितना बेटर है, they are genius as compared to us, but they do not have quality education. उनके पास कुछ अच्छी चीजें नहीं है। हमारे पास सब बोलते हैं हम गधे पड़े हैं, नींद आ रहा है। अरे भाई नींद सबको आता है, किसको नहीं आता है? Who doesn't want to sleep? I also want to sleep. So you must take responsibility of society. Otherwise, sometimes there are many of you after some time or maybe after 2 years going to use Facebook and comment. This should be done in that way. And when somebody is going to ask you, भाई थोड़ा बता अच्छा से explain कर because blank. तो अगर आपको लगता है कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, फर्स्ट इंप्रूव योरसेल्फ, अदरवाइज डोंट कमेंट, डोंट डिस्कस, कीप क्वाइट। यू कैन ओनली सजेस्ट समथिंग व्हेन यू आर डूइंग समथिंग। घर पे बैठ के प्रवचन देना बाबाओं का काम है। आर यू गोइंग टू बी आसाराम बापू? नो। और बाकी बाबा बाबा करना है, नहीं करना है ना। प्रवचनकारी ना बने, यू मस्ट बी, यू आर अ स्टूडेंट, सो बी अ स्टूडेंट एंड ट्राई टू बेटर योरसेल्फ एंड बी अ जेंटलमैन समडे। ठीक है? क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं बोला उन्होंने whenever you prepare for any competition, you cannot take a race until you achieve that target. The reason is एक दिन आपको रेस लेने के वजह से there are thousands people who are going to cross you and you are going to be left behind. तो आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। Again I am not going to tell this. मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। 10th के क्लास के बाद में बच्चे you must resist. You actually see when you are doing good, हमेशा याद रखो, good things in life brings you joy in life, brings joy and happiness. Bad things gives you experience lasts longer than joy and happiness. You must remember that. तो आपके साथ कुछ बुरा होता है और you make mistake, you must learn and move forward.
आज इस स्टेटमेंट को हमेशा के लिए याद रखो। It is going to be always useful. Life is not fair with anyone. To anyone. Also. Sometimes we expect something good, bad happens. Sometimes we expect nothing bad, good thing happens. Sometimes you are trying to make someone happy, that person is going to stab in your back. So these things happen. यही life है, लोग ऐसे ही हैं. But you must learn from your mistake. You must improve it at every aspect, not only education. Education is still mathematical formula is important, but it is not everything. ठीक है? So let's continue our class. बहुत हो गया बात. इसका आंसर आया कुछ? आंसर प्लीज. बहुत बच्चों का आंसर नहीं आया. चलो मैं बताता हूँ. सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसे करते हैं, रेडियाई का दे रखा है रेशियो, सो r1/r2 इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको आना चाहिए. r1/r2 इज 1/2. नाउ व्हाट इज लेंथ का रेशियो दे रखा है, l1/l2 इज 1/3. रेसिस्टिविटी का मतलब क्या है, ρ1/ρ2 दिस इज आल्सो 3:1 3/1. आपको पता है व्हाट इज r1 इज इक्वल टू rho a by l, ρ1 a1/l1. आपको पता है ρ1 है वैसे a1 है, a1 क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, सर्कुलर है. मैं लिख सकता हूं पाई r1 का स्क्वायर अपॉन l1. सिमिलरली r2 आ जाएगा आपके पास √2 पाई r2 का स्क्वायर अपॉन क्या है l2. दोनों का रेशियो r1/r2 क्या आने वाला है, ρ1 पाई r स्क्वायर r1 स्क्वायर बाई l1 अपॉन √2 पाई r2 स्क्वायर बाई l2. इसको कैंसिल कर दो तो आएगा ये ρ1/√2 इनटू r1/r2 का होल स्क्वायर इनटू l2/l1. अब देखो बहुत बढ़िया सॉल्व हो गया. ρ1/√2 क्या है 3 पुट करो, r1/r2 क्या है 1/2 पुट करो, l2/l1 क्या है 1/3 पुट करो. इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर इज 1/4. इट मींस r1 is to r2 is 184. सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Clear, not clear? Okay. ओके, बच्चे का बोलना है कि सर रिपीट कर दो. देखो आपने क्या किया बच्चे, जो भी रेशियोज दे रखे हैं व्हाट एवर रेशियोज आर गिवन, आप पहले रेशियोज को क्या करो साइड में लिख दो. लाइक आई हैव रिटन r1/r2 1/2 दे रखा है. देखो क्वेश्चन में l1/l2 1/3 दे रखा है, लिख दिया मैंने. देन आफ्टर ρ1/ρ2 दे रखा है 3:1, वो भी लिख दिया. आगे देखो फिर मैंने r1 का फार्मूला लिखा ρ1 a1 l1, r2 का फार्मूला लिखा ρ2 a2 √2 a2 l2. एरिया के बारे में बात करोगे तो एरिया सर्कुलर है. सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर. देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे पाई r1 स्क्वायर, इसमें पाई r2 स्क्वायर. नाउ r1/r2 का रेशियो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ρ1/√2 r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर, l2 ऊपर जाएगा l2/l1. ये सारे रेशियोज आपको पता है, यू कैन पुट इट हियर, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है? बच्चे आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहने वाला है. मैं देखता हूं हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर. दिस इज 9 एंड दिस इज 9. Would you tell me आंसर क्या आएगा? अब क्या आएगा आंसर, प्लीज टेल मी.
बहुत बढ़िया है। व्हाट अबाउट अदर्स? यस नीलम, डाउट आपका सॉल्व होगा। तो देखो बच्चे, आपको लास्ट में आगे बताया था ना, R1 by R2 क्या आता है? ρ1 by ρ2 L2 by L1 into R1 by R2 होल स्क्वायर, बताया था आपको। अब ध्यान से देखो, ρ1 by ρ2 and L1 L2 by L1, ρ1 by ρ2 क्या है? एक 1 by 9 है तो दूसरा 9:1 है। अरे इसको क्या करो, ऐसे करो 1:9, 1:9 करो। तो देखो यहाँ पे लेंथ का रेशियो जो है 1/9 है, तो ये क्या आ जाएगा? 1/9 आएगा ना यहाँ पे। L1 by L2 की बात करो, ध्यान से 1:9 आएगा। ρ1 by ρ2 is 1/9, तो 1/9, और ये R1 by R2 क्या आ जाएगा? अभी भी 1/2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/4 आएगा। तो आपको याद क्या रखना है, अगर ρ1 by ρ2 and L2 by L1 दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा कि बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपको देखो, इसमें क्या है, दोनों अगर सेम है मतलब क्या है, ρ1 by ρ2 and L2 by L1 by L2, ये याद रख सकते हो। इफ ρ1 by ρ2 is equals to L1 by L2, ये नोट कर लो कहीं। देन R1 by R2 जो आने वाला है वो आएगा R1 by R2 का होल स्क्वायर, ये याद रख सकते हो। इफ चलो अब इसको हटाता हूं। ठीक है बच्चे, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। पॉइंट इज रेसिस्टर, ये अच्छा पॉइंट है, रेसिस्टर्स इन सीरीज, रेसिस्टर्स इन सीरीज। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो। तो लेट सपोज आपका क्या है, एक सोर्स है, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया 1 2 3 4, 3 ही रखते हैं, 3 रेजिस्टर लगा दिया। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। तो सपोज इसका वोल्टेज जो है बच्चे V है और इसके ऊपर V1 है, यहाँ वोल्टेज V2 है, यहाँ पे V3 है। बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से देखो। अब आपको पता होना चाहिए कि देखो, सबसे पहली बात है कि सपोज आपका रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये वाला सीरीज का मतलब क्या है, इस टाइप के वायर से अगर ऐसे कनेक्टेड हो तो इसको क्या बोलते हैं? सीरीज, सीरीज, सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन का क्या मतलब है? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 1 by 1 सारे के सारे क्या होने चाहिए? कनेक्टेड होने चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन बोलते हैं, राइट। इसमें क्या है, तो ये देखो सीरीज कनेक्शन में क्या है, सपोज यू आर सेंडिंग अ करंट I फ्रॉम हियर, अगर करंट आप वायर से I भेजोगे तो क्या इसमें कोई ब्रांच है? देयर इज नो ब्रांच, ये तो एक सिंगल वायर है। सो सिंस दिस इज अ सिंगल वायर, करंट इज गोइंग टू फ्लो, current is going to flow, I current is going to flow through all, मतलब ये I करंट अगर जाएगा तो I करंट ही बाहर निकल जाएगा, I अगर जाएगा तो I क्या करेगा? बाहर निकलेगा, बिकॉज इसमें ब्रांच नहीं है।
एक ही पाथ है, एक ही पाथ है तो कहाँ जा सकता है करंट, बाहर जा ही नहीं सकता। ओके, कुछ बच्चों का इसमें डाउट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, तो अभी वो मैंने डिस्कस नहीं किया है, जब करूंगा आप लोग देख लेना। ओके, तो सीरीज कनेक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है बच्चे, अब ध्यान से देखो। तो सीरीज कनेक्शन है तो ये जो वोल्टेज है, नेट वोल्टेज की बात कर रहा है, इस वोल्टेज की बात करो आप, तो दिस वोल्टेज गोइंग टू बी, इसमें सोर्स क्या है, एक ही सोर्स है ना बच्चे, एक सोर्स है जहां से क्या हो रहा है, आपका करंट यहां पे फ्लो हो रहा है, जैसे सपोज आई करंट फ्लो हो रहा है, तो आई अगर इधर से आप जाएगा तो यहां से भी आई जाने वाला है, यहां से भी आई आएगा, तो इधर से क्या होने वाला है, आई आने वाला है। बात समझ में आना चाहिए। और ये सीरीज में है और एक ही आपके पास क्या है, एक ही सर्किट है, ये एक यूनिक सर्किट है। अब ध्यान से देखो, सोर्स तो यही है, तो ये वोल्टेज जो सप्लाई करने वाला है, ये वोल्टेज कहां-कहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसको कुछ-कुछ सबको मिलेगा, कुछ-कुछ वोल्टेज क्या होगा भाई, सबको मिल जाएगा। अब कुछ-कुछ सबको अगर वोल्टेज मिल जाएगा तो आप कुछ ऐसे देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब आपको पता है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1 है, करंट कितना पास हो रहा है, तो I, so according to Ohm's law V equals to क्या, V1 equals to क्या हो जाएगा, V1 equals to क्या होगा बच्चे, V1 is equals to I into R1, V2 equals to क्या होगा, I into R2, V3 equals to क्या होगा, I into R3। अब यहाँ पे पुट कर दो तो आपके पास आने वाला है V इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई कॉमन लो, आएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है, आई प्लस आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। यार ये सबको क्लियर हो गया ये? तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से आता है एक कंसेप्ट इक्वल, आप इसको ऐसे लिख सकते हो V बाई आई इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसको क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो कि R इक्विवेलेंट, मतलब क्या है बच्चे, मींस ये है कि सिंस वी हैव थ्री रेजिस्टर्स, तीनों रेजिस्टर्स को आप एक साथ ऐड कर दो तो आपको एक नया रेजिस्टर मिलेगा जिसको मैंने R इक्विवेलेंट बोला। तो ये सर्किट में हो क्या रहा है, अब इस सर्किट को मैं अगर बनाऊं तो इस सर्किट में क्या है, ध्यान से देखो, इसके इक्विवेलेंट अपन सर्किट बना सकते हैं जहां पे क्या है, वोल्टेज है, करंट है एंड एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो आप कैसे बना सकते हो, आपके पास भाई एक रेजिस्टेंस है, वो क्या है, आर इक्विवेलेंट है, यहाँ पे वोल्टेज क्या है, V है, और इसके थ्रू करंट क्या हो रहा है, I पास हो रहा है। तो इसमें भी जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे V है बच्चे, तो इसके एक ही रजिस्टर है, तो जो वोल्टेज यहाँ पे है वो टोटल वोल्टेज इसके क्रॉस आने वाला है, तो V इक्वल टू क्या कर सकता हूँ मैं, I into R इक्विवेलेंट कर सकता हूँ। तो मुझे बताओ पिछले वाला और ये वाला क्या है, सेम है, इसका मतलब क्या है, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है ये होगा जहां पे R इक्विवेलेंट क्या होने वाला है, समीशन ऑफ रेजिस्टर, R इक्विवेलेंस क्या होने वाला है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होने वाला है। चलो इसको नोट कर लो, ये डेरिवेशन याद भी रखोगे।
ठीक है, अब देखो बच्चे, तो कुछ की पॉइंट्स आपको लिखाता हूं जो कि आपका क्या होने वाला है। इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टर्स इन सीरीज। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि देयर आर n रेसिस्टर्स, ये तो 3 के लिए प्रूफ किया था। अगर आपका n रेसिस्टर्स आएगा तो क्या होगा, R1 + R2 + R3 + R4 सारे रेसिस्टर्स को ऐड कर दो तो वो क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टर मिल जाएगा। और उसके बाद आप इक्विवेलेंट सर्किट हमेशा ही बना सकते हो। अब कुछ पॉइंट आप इससे रिलेटेड देखोगे, वन बाय वन लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके लिए, रेसिस्टर्स इन सीरीज के लिए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाना, अरे सर ये क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट बच्चे, फर्स्ट पॉइंट ये है कि कोई भी रेसिस्टर है, अगर इसके थ्रू I1 जा रहा है, इसके थ्रू I2 करेंगे, इसके थ्रू I3, इसके थ्रू I4, रेसिस्टर में क्या होता है, अलग अलग मान लो रेसिस्टर के थ्रू I1 I2 I3 I4 जा रहा है, तो ऑल द currents are equal. I equals to I1 equals to I2 equals to I3 equals to I4। अगर और भी है तो सारे के सारे करंट क्या होने वाले हैं बच्चे, इक्वल होने वाले हैं। और यहाँ से क्या होता है, आप ऐसे यहाँ से भी लिख सकते हो, V1 by R1 equals to V2 by R2 equals to V3 by R3 equals to V4 by R4। अब बोलोगे ये कैसे आएगा, तो बहुत कॉमन सेंस है, V1 equals to IR होता है ना, I equals to क्या आएगा, V by R। तो I1 क्या होगा, I जो है यहाँ पे I1 क्या होगा, equals to V by R लिख लो, V1 by R1, V2 by R2, V3 by R3, V4 by R4। क्लियर हो गया। सेकंड आप पॉइंट इसी में लिख लोगे, ये है ना, ये कांस्टेंट होगा, ये भी लिख सकते हो कांस्टेंट। अरे रेशियोस कांस्टेंट ही तो आ रहा है, हाँ तो यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ कि V1 is to V2 is to V3, ये किसके इक्वल होगा, R1 is to R2 is to R3। ये तो आपको रेशियो के कंसेप्ट में मैंने बता रखा था कि तीनों रेशियो इक्वल है, तो V1 V2 V3 किसके इक्वल होगा, R1 R2 R3 के रेशियो के इक्वल होगा। थर्ड, equivalent resistance is equal to sum of all resistors, sum of all resistors। फोर्थ पॉइंट है potential difference across the combination is equal to sum of potential difference across each resistors। टोटल यहाँ पे लिख लेना बच्चे, टोटल लिख लेना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर्स। इसका क्या मतलब है, जो V इक्वल टू आएगा V1 + V2 + V3, अगर 5 10 और है तो उसको ऐड कर लो। अंदर तक चलो। यस बच्चे, किसी को कोई डाउट है? आज की क्लास 7:15 तक है, 7:15 यशवी 7:15 ये पॉइंट लिख लो तो ये याद रखोगे। फोर्थ पॉइंट रिपीट,
अरे फोर्थ पॉइंट, अच्छा फोर्थ पॉइंट बच्चे ये बोला था ना कि अगर मान लो आपके पास सर्किट है ऐसे, राइट, तो ये वाला वोल्टेज V है, तो इसके अक्रॉस V1 आया, V2 आया, V3 आया, तो अक्रॉस जो कॉम्बिनेशन है वोल्टेज V है, तो इसके अक्रॉस कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस जो ये जो है ना, अगर ये दो पॉइंट यहाँ पे लो, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस V है, ये इसके इक्वल होगा, जो इंडिविजुअल वोल्टेज है अक्रॉस द रेजिस्टर उसके समीशन के इक्वल होगा, उसी को लिखा है मैंने V V1 V2 V3। क्लियर होगा? आई थिंक यस। अब एक और चीज इसमें याद रखोगे ऐसे, अगर मान लो किसी एक वायर को ओपन कर दिया, ओपन करने का मतलब मान लो एक जगह से कहीं से कट कर दिया वायर इसमें सीरीज में, तो एक जगह से करोगे तो पूरे सर्किट का कनेक्शन लॉस हो जाने वाला है। ऑब्वियसली एक ही वायर से कनेक्टेड है, उसी को कट कर दिया तो आपको सर्किट में करंट पूरा क्या होगा, लो बंद हो जाएगा। चलो इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है बच्चे, आपके पास एक यहाँ पे सोर्स है, ध्यान से देखो, उसके बाद में यहाँ पे क्या है, एक अब ध्यान से देखो क्या होने वाला है, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, ये वोल्टेज क्या है, V है, ये वोल्टेज क्या है, V है। तो आप इधर से मान लो करंट I सेंड करते हो, यहाँ से I सेंड करते हो, अगर इधर से I करंट जाएगा तो इधर से I आएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से जितना जाएगा उतना ही आएगा। अब करंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसमें ये I1 है, ये आपका I2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा। बात समझ में आई? I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया। अब देखो ध्यान से, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस ये जो ऐसे लाइन बनाते हैं ना बच्चे, इसका मतलब ये है कि हर जगह पोटेंशियल सेम है, ये ध्यान रखना। जैसे लाइन का मतलब है कि कोई रेजिस्टर इसमें नहीं है, ये आपने बड़ा वायर अपने आप बनाया है दिखाने के लिए, ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल सा खाली चीज है, इसका रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता है। तो आप देखो वोल्टेज अगर बच्चे आपके पास ये वाला है, तो अगर मैं इसके अक्रॉस बात करूं, यहाँ पे भी अगर लेट्स सपोज यहाँ पे टोटल वोल्टेज डिफरेंस होता है ना, तो मान लो यहाँ पे कुछ V1 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपका V1 है, यहाँ पे V2 है, तो V1 माइनस V2 यही क्या होता है, V होता है, आपको पता रखा है वोल्टेज डिफरेंस। तो आप यहाँ से ध्यान रखो, अगर मैंने इस रेजिस्टर के अक्रॉस बात किया, इसके अक्रॉस बात कर दिया, वो भी V1 माइनस V2 होगा, ये पॉइंट से ये भी कनेक्टेड है, R1 भी, R2 भी, R3 भी, इसका मतलब क्या होगा, जो इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा, जो इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा, ये इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा, सारे के सारे वोल्टेज क्या आने वाले हैं, वोल्टेज डिफरेंस V ही आने वाले हैं। क्या आने वाला है, V। ऑब्वियसली ये वाले वायर के बीच में V1 V2 है, इस वाले वायर के लिए V1 V2 है, इसके लिए भी क्या है, V1 V2 है। इसका मतलब क्या है, तो यहां से आप लिख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस across all resistors are equal। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो इसको अब ऐसे और अच्छे से ये तो समझ गया, इसको ऐसे लिखो, सपोज यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, V इक्वल टू हो जाएगा V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। इधर से आप करंट आपने सेंड किया है, तो I को मैं ऐसे लिख सकता हूं, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब आपको यहाँ से और भी चीजें पता है, इसके यहाँ पे पोटेंशियल क्या है बच्चे, V1 है ना, करंट I1 जा रहा है, तो V1 इक्वल टू क्या आएगा, I1 R1
V2 इक्वल टू क्या होगा I2 R2, V3 इक्वल टू क्या है I3 R3। आपने अभी देखा था कि V1 V2 V3 सारे के सारे इक्वल हैं, तो क्या हो जाएंगे सिंस V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, सिंस V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 आएगा आपका I1 R1 इक्वल टू I2 R2 इक्वल टू I3 R3। लास्ट टाइमिंग आज 7:15, बहुत बार रिपीट कर दिया, 7:15 में छोड़ दूंगा आप लोगों को, 5 मिनट्स मोर, ठीक है। ये आपके पास आ गया और दिस इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चे, ये भी इक्वल टू आएगा V1 इक्वल टू, ये आपके पास आ गया। चलो यहां तक देख लेते हैं। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, आपको पता है कि वोल्टेज आपने V अगर मान लो आपने वोल्टेज क्या सेट किया है, आपने वोल्टेज यहाँ पे सेट किया है V वोल्टेज सेट किया है, तो मैं क्या करता हूँ इसके इक्विवेलेंट एक सर्किट बनाता हूँ, इसके इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ। तो ये मेरा पूरा का पूरा रेजिस्टेंस इस दोनों पॉइंट के क्रॉस आने वाला है ना, तो मैंने उसको कुछ ऐसे कर दिया भाई, यहाँ पे वोल्टेज V है और यहाँ पे R इक्विवेलेंट है, करंट इसमें भी क्या है I है। तो अब आपको समझ में आना चाहिए अगर ये R इक्विवेलेंट बोला तो वो भी किसके इक्वल होने वाला है बच्चे, दिस इज आल्सो इक्वल टू R इक्विवेलेंट इनटू I। ऑब्वियसली इसी सर्किट के इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, बस ये पूरे रेजिस्टर को उठा के आपने हटा दिया है और आप इसकी जगह R इक्विवेलेंट पे लेके आए हो। अब यहां से क्या होगा, आप देखो I1 निकालो तो I1 क्या आने वाला है बच्चे, I R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय I R1, I2 डायरेक्ट निकालो R इक्विवेलेंट इनटू I डिवाइडेड बाय R2, I3 निकालो, I3 आएगा R इक्विवेलेंट इनटू I डिवाइडेड बाय R3। अब नेक्स्ट यहाँ क्या करोगे, इसको किस में पुट करो, इसमें पुट करो, तो I इक्वल टू क्या आने वाला है, I इक्वल टू आएगा I R इक्विवेलेंट अपॉन R1 प्लस I R इक्विवेलेंट अपॉन R2 प्लस I R इक्विवेलेंट अपॉन R3, ठीक है। I से I कैंसिल हो जाएगा, इसमें से क्या आ जाएगा आपका 1 इक्वल टू R इक्विवेलेंट कॉमन लो 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, तो R इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा 1 upon 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। इसको सॉल्व कर सकते हो आप, सॉल्व करके आप देखोगे कि ये आएगा R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय, दिख नहीं रहा क्या, मुझे देखना पड़ेगा, चलो अभी नीचे लिखता हूँ, यहाँ से आएगा R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3, तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। चलो इसको लिख लो, फटाफट लिख लो। अच्छा कांट सी दैट, ओके, कौन सा नहीं देख सकते हो, एक मिनट अभी रुक जाओ। आई होप अभी दिख जाएगा आपको। डन, अब की पॉइंट लिखता बच्चे कि नेक्स्ट क्लास में अपने को क्या बचेगा, बस डिस्कशन। सबसे पहला पॉइंट V इक्वल टू क्या होता है, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V4। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज सेट है, ये आप लिखोगे दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेकंड पॉइंट आप लिखोगे I by R,
आई आर इक्वल टू क्या आएगा, I1 R1 इक्वल टू I2 R2 इक्वल टू I3 R3 इक्वल टू I4 R4। ये क्या है, R इक्विवेलेंट। ये भी होता है। थर्ड पॉइंट इसमें लिखो, सारे के सारे लिखो आप। I1 is to I2 is to I3, ये किसके इक्वल होगा, 1 by R1 is to 1 by R2 equals to 1 by R3। ये बिल्कुल क्लियर है। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज I is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। वोल्टेज तो कांस्टेंट है, वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो V इक्वल टू IR होगा, तो I जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by R। इसीलिए ऐसे आ रहा है। क्या आपको पता है? फोर्थ पॉइंट आपको लिखना है। फोर्थ पॉइंट लिखना है, जो I होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द करंट I1 + I2 + I3। और भी होंगे तो सबको ऐड कर सकते हो। फोर्थ फिर से देखो, फॉर टू रेसिस्टर्स R इक्विवेलेंट होगा। R इक्विवेलेंट इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो 1/1 by R1 plus 1/1 by R2। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो बच्चे आपको पता आएगा R1 R2 upon R1 plus R2। दो के लिए क्या, अगर 10 12 दिए तो आपको क्या लिखना है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1 by R1 plus 1 by R2। अगर 3 होगा तो 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। 5 होगा तो 5 को ऐड कर दो उसका रेसिप्रोकल लेके, तो ये आपका R इक्विवेलेंट हो गया। ओके, तो सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस जो है मैंने आपको अभी करा दिया है। अब अपने को क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। और बच्चे इनका कुछ एनसीईआरटी में डाउट्स था तो एनसीईआरटी में डाउट्स बाद में ले लूंगा आपका। अगर बोलोगे आप फ्री हो तो बाद में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चे एग्जांपल्स कराऊंगा मैं बहुत सारे। ओके, तो फॉर टुडे क्लास यहीं पे अपन खत्म करेंगे। यस बच्चे, पूछो।